Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurav Gautam. In this video lecture we are going to discuss Colrosh law. Okay, and Colrosh law is for calculating molar conductivity. Okay, and if we specifically speak, Colrosh law is used to calculate limiting molar conductivity of an electrolyte. Okay, what is limiting molar conductivity? In the last video lecture I told you when conductivity of a very dilute solution of an electrolyte is measured, then that conductivity is called as limiting molar conductivity. Okay, or you can also say it molar conductivity at infinite dilution. So Colrosh law said that the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and the anion, each multiplied with number of ions present in one formula unit of the electrolyte. Okay, फॉर एग्जांपल NaCl की, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. अगर NaCl की आपने लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, ओके, तो अगर आपके पास लिमिटिंग मोलर कनेक्टिव NaCl इज कंपोज्ड ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक Na पॉजिटिव से बना है और एक Cl नेगेटिव आयन है उसमें. सो इट मीन्स you have to add limiting ionic conductivity of Na positive ion and limiting ionic conductivity of Cl negative ion, जो कि आपको डाटा गिवन होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इट मीन्स इन दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. जस्ट ये करना है, मतलब जितने कटायन और अनायन से वो बना है पर्टिकुलर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट, उन कटायंस और नायन की जो सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा दैट इज इक्वल टू दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जांपल BaCl2 के लिए अगर देखें तो BaCl2 इज मेड अप ऑफ 1 Ba+2 आयन एंड 2 Cl नेगेटिव आयन. ओके, so limiting molar conductivity of BaCl2 will be equal to limiting ionic conductivity of Ba+2 ion plus limiting ionic conductivity of Cl negative ion plus limiting ionic conductivity of Cl negative ion, क्योंकि दो Cl नेगेटिव आयन है ना. ओके, और यू कैन ऑल्सो सिंपली से दैट लिमिटिंग ionic conductivity of Ba positive plus 2 ion plus 2 into limiting molar conductivity of molar ionic conductivity of Cl negative ion. Okay, similarly for Al2SO4 thrice, it is made up of 2 aluminum ions plus 3 sulfate ion. So limiting molar conductivity of Al2SO4 thrice is equal to 2 into molar conductivity of aluminum plus 3 ion, limiting molar ionic conductivity of aluminum plus 3 ion, and यहाँ पे ये सिंबल डालना है ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़ीरो कंसनट्रेशन, ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसनट्रेशन. 2 इंटू limiting ionic conductivity of Al plus 3 ion plus 3 into limiting ionic conductivity of sulfate ion. Okay, so this is the Colrosh law for calculating molar conductivity, or you can say limiting molar conductivity of an electrolyte. Okay, and this Colrosh law has many applications. Let us discuss those applications one by one. Okay, first, calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, यू कैन कैलकुलेट दैट बाय यूजिंग कॉलरॉश लॉ. हाउ, इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं. इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इन्फानाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर दिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं, HCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सोडियम एसीटेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ये वैल्यूज़ दी हैं रिस्पेक्टिवली. ओके, व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड. ठीक है, व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COOH. इट मीन्स वी नो दैट टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, we know that acetic acid whenever ionized will produce acetate ion and H positive ion.
Okay, it means to calculate limiting molar conductivity of acetate ion, or sorry, acetic acid, you have to add limiting ionic conductivity of acetate ion and limiting ionic conductivity of H positive ion. Okay, so you have to calculate these two values from the given values of molar conductivities, and values given are for NaCl, HCl and sodium acetate. Okay, limiting molar conductivity of NaCl is given this, and what it means, sum of ionic conductivity of Na positive ion and sum of ionic conductivity of Cl negative ion. Similarly, limiting molar conductivity of HCl is given this, what it means, limiting ionic conductivity of H positive ion and plus limiting ionic conductivity of Cl negative ion, means इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है. ओके, यहाँ से यही निकल रहा है कंक्लूजन. सिमिलरली for sodium acetate is also given, but it means limiting ionic conductivity of acetate ion plus limiting ionic conductivity of Na positive ion is equal to this. Okay, clear. तो आपको इन दोनों का सम इक्वल टू दिस, इन दोनों का सम इक्वल टू दिस, इन दोनों का सम इक्वल टू दिस दिया गया है. तो अगर आप इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस आपके पास बन गई, एक इक्वेशन, रुको, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके अगर आप ये वाला फॉर्मूला बना पाओ कि लैम्डा नॉट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव आयन ये किसके इक्वल होगा, देन यू विल मीन्स, इट मीन्स यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू वेरी वेरी इजीली. और इसको बनाया जा सकता है कैसे, यू ऐड 2 + 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट सम. उससे होगा क्या, ओके, लेफ्ट जो इनकी राइट हैंड साइड्स हैं इक्वेशंस की, वो आपस में जो जो ऑपरेशन लगाओगे वो हो जाएगा उन पे, और लेफ्ट हैंड साइड्स पे भी वही ऑपरेशन हो जाएगा. क्लियर. तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, ऐड 2 + 3 और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट सम. ओके, दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा एच पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव आयन, लैम्डा एसिटेट आयन प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव आयन. ओके, इन दोनों को प्लस किया था. ओके, और माइनस आपने किसको कर दिया, माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन, माइनस अंदर चला गया तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन, ये बन गया. ओके, और आपके पास सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के सम से क्या बन गया 425 + 91 माइनस 126.4. ओके, क्लियर. Cl नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव आयन कट जाएगा, Na पॉजिटिव आयन से Na पॉजिटिव आयन कट जाएगा, लाइक दिस. और बचा क्या आपके पास राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, लैम्डा नॉट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव आयन, एंड यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या बना 390.5. ओके, और इसका मतलब क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड वही निकाला ना आपने, इसका मतलब तो इन दोनों के सम से जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी वो इसी की निकलेगी ना. इट मीन्स अल्टीमेटली आपने इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली. ओके, क्लियर. सो और हो सकता था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता कि आपने एसिटिक एसिड की निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आपको एसिटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी होती और एच पॉजिटिव आयन की भी वैल्यू दी होती है. तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम तो आपने सिंपली ऐड करके बस ये वैल्यू निकाल देनी थी इसके लिए. ओके, बट इतना सिंपल नहीं आता आपके पास क्वेश्चन. ओके, so that's why this type of question will appear in your examination. Okay, if question came from the Koch law. And the second application of Koch law is calculation of degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करने के लिए अल्फा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा से डेजिग्नेट करते हैं. मेरे पिछले वीडियोस में आपको पता होगा कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर नहीं पता तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. ठीक है, मतलब जैसे मान लो एसिटिक एसिड लिया आपने, उसका 1 मोल लेके उसको डिजोल्व कर दिया वाटर में, 1 मोल से सिर्फ 2 मोल ही हैं, उससे 0.2 मोल ही हैं जो डिसोसिएट हो गए एसिटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन बना रहा है. बाकी 0.8 मोल जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहे. इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हुई एसिटिक एसिड के लिए, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 0.2. ओके, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कोच लॉ. ठीक, किसी आप क्या करोगे, आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मान लो आपने एसिटिक एसिड का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ हमारे पास टेबल में अवेलेबल होती हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आपको मान लो वो एक्स है उसकी वैल्यू. ठीक है, और आपने जो
एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया, जिसको मान लो आपने वाटर में डिज़ोल्व करके एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया हुआ है, उसकी कंसनट्रेशन सी रखी है इस सोल्यूशन में, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में जो उसकी कंडक्टिविटी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा एम एट कंसनट्रेशन सी। ओके, क्लियर। और ये वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आपको गिवन होगी, टेबल से मिल जाती है, टेबल हमारे पास अवेलेबल हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट कंसनट्रेशन सी, जो आपने खुद बनाई है कंसनट्रेशन सी, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास एट कंसनट्रेशन सी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो निकल आएगा। बस आपको क्या करना है, जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसकी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है एट कंसनट्रेशन सी, और उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है वो टेबल से देख के ये रेशो निकाल लोगे, दैट देन यू विल गेट अल्फा। ओके, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हाँ, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास निकल आता है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सबसे पहले तो जैसे एसिटिक एसिड जो है अपने एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन के साथ ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो रेशो होती है, रेज टू पावर देर को स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 नहीं है इनका। ओके, ये जो रेशो होती है, इस रेशो को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज दी डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना भी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास अल्फा निकल जाए। हमारे पास ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है +1 में इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हालांकि मैं इसकी डेरिवेशन, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, ये दिमाग में रख लो, क्लियर। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो वहाँ से आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। ओके, क्लियर। बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ये यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होती हैं, ठीक जैसे एसिटिक एसिड था ना ये, ठीक, मतलब जब यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनमें एक कटायन और एक अनायन हो, मतलब जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो वो एक कटायन बनाएगा एक अनायन बनाएगा, यूनी 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 मीन्स 1, ठीक है, क्लियर। बट अगर आपके पास यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो उस टाइम आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला ये नहीं आएगा, तब फॉर्मूला क्या आएगा, लेट अस डिस्कस, ठीक है। मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है। तो इट मीन्स जब ये वाला इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस X नंबर ऑफ कैटायंस एंड Y नंबर ऑफ एनायंस। ओके, क्लियर। और इसकी अगर कंसंट्रेशन C ले रखी है आपने इलेक्ट्रोलाइट में, तो C में से C अल्फ़ा कंसंट्रेशन, C अल्फ़ा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो C में से C अल्फ़ा कंसंट्रेशन इसकी डिसोसिएट होगी, बाकी नहीं होगी। तो एट इक्विलिब्रियम ये कितना रह जाएगा, C माइनस सी अल्फ़ा एज इट इज़ रह जाएगा। और जो इसके C अल्फ़ा टूटेंगे उनकी वजह से क्या बनेंगे, कटायन और अनायन। कितने कटायन और अनायन बनते हैं, इसका एक टूटेगा तो आपके पास X कटायन बनते हैं, Y अनायन बनते हैं। बट इसके टूटे कितने हैं मॉलिक्यूल्स, C अल्फ़ा, तो ये कितना बन जाएगा X इंटू सी अल्फ़ा, और B ये अनायन कितने बन जाएंगे, Y इंटू सी अल्फ़ा। ओके, क्लियर। तो इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच गई, C माइनस सी अल्फ़ा, तो C कॉमन निकल गया, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। और कटायन और अनायन की कंसंट्रेशन क्या आ गई एट इक्विलिब्रियम, ये। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, मैंने क्या बोला था आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इनटू सेकंड प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, जो ये कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास केसी के रिलेशन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करने पे यू विल गेट रिलेशन फॉर केसी दिस, you have to put value of X and Y according to the, you can say, electrolyte, ठीक है। फॉर एग्जांपल Al2SO4, सॉरी BaCl2 के लिए
आपके पास Ba+2 और 2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, और y की वैल्यू 2 है। तो आपको x और y की वैल्यू फिर अकॉर्डिंगली भरनी पड़ेगी। ओके, और उससे उससे आपके पास Kc के इस रिलेशन में आप पुट कर दोगे। क्लियर? तो इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से सीधा ड्राइव भी कर सकते हो। ओके, या इलेक्ट्रोलाइट जो एक्चुअल में है उसको लेके भी डेराइव कर सकते हो। ठीक, और अभी देखते हैं अब यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर इसी फॉर्मूले से निकालना हो फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट का, तो क्या बनेगा? तो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए x=1 है, y=1 है। जब वो वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट Kc=C∝² by 1 minus alpha. Okay, so this is the second application of the Kulrosh law, क्योंकि Kulrosh law से हमारे पास ये निकलती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमें टेबल्ड वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, आप लेबॉर्ट्री में देखोगे तो आपको ये टेबल्ड वैल्यूज़ आपके मैनुअल के पीछे मिल जाती हैं। ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस। ओके, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Kc की वैल्यू निकालनी है, एंड लैम्डा नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज गिवन दिस। ठीक, क्लियर? तो आपको पहले अल्फ़ा निकालने पड़ेगा, उसके बाद Kc निकलेगा। ओके, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Kc इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके पास कंडक्टिविटी K की वैल्यू दी हुई है। ओके, क्लियर? और मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C नहीं दी हुई, वो निकालनी है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन दी हुई है ये। ठीक है, बट एट कंसंट्रेशन C चाहिए ना अल्फ़ा निकालने के लिए। अल्फ़ा के लिए क्या चाहिए? लैम्डा C बाय लैम्डा नॉट, ये चाहिए ना। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C निकालनी है, उसको निकालने के लिए इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है, एसिटिक एसिड की ये वाली जो कंसंट्रेशन गिवन है, इस कंसंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी मतलब K की वैल्यू क्या है वो गिवन है। क्लियर? तो K की वैल्यू गिवन है आपके पास कंसंट्रेशन C पे, मतलब इस कंसंट्रेशन पे आपने जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना कोई मुश्किल थोड़ी ना। कैसे निकलेगा? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? K/1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, उस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी K की और मोलैरिटी की, जिस मोलैरिटी पे आपने मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपने यहाँ पे K की वैल्यू आपको जो गिवन है वो पुट कर दी और मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर दी। तो अल्टीमेटली आपके पास कंसंट्रेशन C पे एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ दिस। ठीक है, उस पर क्या आपके पास मोलर कंडक्टेंस आ गई इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए? वो आ गई ये। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद तो अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी फॉर, ठीक है, जो ये सोल्यूशन बना है 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन, उस एसिटिक एसिड सोल्यूशन के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या से निकलेगी? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C विच इज़ द गिवन कंसंट्रेशन एंड एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन C पे मोलर कंडक्टेंस क्या है वो अभी हमने निकाली है, वो वैल्यू पुट कर दो। और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या है वो आपको सॉरी इन्फानाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या है वो भी गिवन है 390.5 ये। ओके, तो आपने इन दोनों का रेशो किया तो अल्फ़ा आपके पास आ गया 0.1233। ओके, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया आपका एसिटिक एसिड के लिए। ओके, जो आपके पास गिवन सोल्यूशन है इस कंसंट्रेशन वाला, उसमें एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.1233। अब Kc के लिए C∝² बाय 1 माइनस अल्फ़ा, Kc निकालना है ना। अल्फ़ा आपके पास आ गया है, कंसंट्रेशन C आपको गिवन है 0.0012, यही थी 1208, लेट मी चेक, 1028 0.002 ये गिवन है। C गिवन है, अल्फ़ा निकाल लिया है, पुट करो वैल्यू तो आपके पास Kc की वैल्यू ये आ जाएगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो यूनिट्स नहीं लिखनी। ओके, क्लियर? तो यहाँ से आपने Kc भी निकाल लिया। जो आपके पास ये सोल्यूशन बना है दिस मच मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसके लिए Kc की वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो आपने निकाल लिया उस सोल्यूशन के लिए। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। ओके, एंड द थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉलेबल भी बोलते हैं कई इसको, स्प्रिंगली भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकालने के लिए कैसे? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K × 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है,
और जो स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सबसे पहले स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। जब इनका सोल्यूशन बनाना शुरू करो, जब आप सॉल्ट डालोगे तो थोड़ी अमाउंट डालोगे तो सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, मतलब ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होते ये वाटर में, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही डिज़ोल्व होते हैं इनसाइड दी वाटर और एनी इन एनी सॉल्वेंट जिसमें भी आप डिज़ोल्व कर रहे हो, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वाटर एज ए सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। तो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या होता है, आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा ही सॉल्ट डाला, जैसे मान लो AgCl, इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है, तो थोड़ा सा ही डालने पे ये अपनी सैचुरेशन स्टेट अचीव कर लेता है, ठीक है। उस सैचुरेशन स्टेट पे कंसंट्रेशन क्या है, उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्ट, ठीक है। वो आपने निकालनी है सॉलिबिलिटी, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब एक तरह से मोलैरिटी निकालनी है एट सैचुरेटेड स्टेट। जो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन बना रहे हो, जब वो सोल्यूशन अपनी सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंचेगा, उस टाइम उसकी जो मोलैरिटी होगी उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा मोलर कंडक्टिविटी वाला, मोलर कंडक्टेंस वाला। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या क्यों 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 लगाया हमने, क्योंकि स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते ही बिल्कुल माइन्यूट सी अमाउंट में डिजॉल्व है, उसके बाद तो वो डिजॉल्व होते नहीं, थोड़ा सा डालो वो सैचुरेशन स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जीरो कंसनट्रेशन वाला केस ही होता है उनका। तो इट मीन्स ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सॉलिबिलिटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको डाटा से मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला कि आपके पास हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डाटा अवेलेबल होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से सॉलिबिलिटी निकाल लो, सॉलिबिलिटी इस साइड चलेगी और ये इधर आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अब एक न्यूमेरिकल, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस। कंडक्टिविटी दे रखी है, ओके, के, क्लियर। फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी निकालनी है, ओके। गिवन आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ag पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो AgCl सोल्यूशन के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा नॉट m, दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। और दोनों की वैल्यूज गिवन है आपको, Ag पॉजिटिव आयन के लिए भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या दी हुई है कंडक्टिविटी, वो गिवन है, और Cl नेगेटिव आयन के लिए भी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl वो कितनी आ गई, 138.2, ये आ गई दोनों की वैल्यू सम का सम निकाल के, ठीक। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई आपके पास, ठीक है, क्लियर। और फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी दे रखी है ये, ठीक है। कंडक्टिविटी दे रखी है और मोलर कंडक्टिविटी इनडायरेक्टली दे रखी थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो चाहिए थी आपको, ठीक है, क्लियर। तो कोलरॉश लॉ लगा के आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो के की वैल्यू पुट करो, लैम्डा नॉट m की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट सॉलिबिलिटी, ओके। तो सॉलिबिलिटी जो है आपके पास मोल पर लीटर में आ गई यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपने सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर में ना निकालनी हो, लेट अस से आपने ग्राम पर लीटर में निकालनी हो, सॉलिबिलिटी का मतलब यहाँ पे मोलैरिटी है ना, ठीक है। आपने मोलैरिटी निकाली सोल्यूशन की, ठीक है। बट आपने मोलैरिटी ना निकाल के स्ट्रेंथ निकालनी हो सोल्यूशन की, ओके। स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में जो उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, ग्राम पर लीटर, उसको आप मोलैरिटी से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ठीक है। तो AgCl का मोलर मास कैलकुलेट कर लो, ओके, क्लियर। और मोलैरिटी की जो वैल्यू आई उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कर दो, तो आपके पास इस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो भी आ जाएगी, स्ट्रेंथ, ओके। मोलैरिटी जो ये आई इनटू मोलर मास मल्टीप्लाई करो किसका, AgCl का, देन यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो एंड यूनिट्स विल बी ग्राम पर लीटर, ओके। तो आंसर आपने ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो कंसंट्रेशन मेजर करने का ही तरीका होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ में निकालना है कि मोलैरिटी में निकालना है, दैट्स योर चॉइस, okay. So that's it students, this is all about applications of Kohlrausch law, okay, and this is very important topic, okay. So okay, thank you, see you in the next class.